Good morning, everyone. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th business studies. In the last video, we discussed the first chapter of business studies, that is the nature and significance of management. In this chapter, we discussed a lots of theoretical topic related to the management, that is what is management, what are the traditional and modern concept of management, what are the function of the management, what are the levels of the management, that is the top level, middle level and supervisory level of management, what are the roles and responsibilities of different level of management, that is what are the role of the top level, what are the roles of the middle level, and what are the role of the supervisory level of the management. Thereafter we discuss the few features of the management by which we can easily identify what is the basic characteristics of management and how we can identify the management as a process. Basically, if we are talking about the management, so we discuss a lots of advantages of the management. What are the advantages of the management? So after the completing of the chapter 1 of part A, that is a nature and significance of the management, let's we take the few case studies for your examination purpose. So let's we take the analysis of few case studies which are related to the different chapters. Okay, so in this video, first of all, we discussed a few case studies which are related to the first three chapters. The first chapter is nature and significance of management. The chapter number 2 is a principle of management, and chapter number 3 is a business environment. So let's we discuss the some of the important case study. The first case study, as you can see that on your screen, Narendra Chal Networks and Technology Limited is a leader in technology innovation in USA, creating products and solution for a connected world. यानी नरेंद्र नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में यूएसए में लीड करती है, एक लीडर कंपनी है, लीडिंग कंपनी है. इट हैज़ अ लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. उसकी एक बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है विच इन्वेंटेड द फर्स्ट स्मार्ट वॉच VI, which besides showing the time would also monitor few health parameter like heart beat, blood pressure. यानी इस कंपनी ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या किया, हेल्थ पैरामीटर्स मॉनिटर डिस्कस एक इनोवेशन किया, इन्होंने इन्वेंट किया एक ऐसी स्मार्ट वॉच जिसके हेल्प से हम किसी भी पर्सन की हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं. वाइल इन सर्च ऑफ मार्केट एब्रॉड, द कंपनी फाउंड दैट इन इंडिया, यानी उसने जब मार्केट एनालाइज किया तो उसने फाइंड आउट किया कि इंडिया द रिफॉर्म प्रोसेस वॉट अंडर वे विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द फैक्ट दैट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हैज़ बीन एबोलाइज्ड. उसने ये देखा कि अब उसे इंडिया में वर्क करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस पॉलिसी है वो ख़त्म कर दी गई है. The company was also aware that there had been increased level of interaction and interdependence among the various nation of the world. और ये भी देखा गया कि हमारे देश में जो पूरे वर्ल्ड में जो नेशन की इंटरडिपेंडेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है. बाय ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. यू नो वेरी वेल, ग्लोबलाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज द वसुधैव कुटुंबकम. व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम? दैट इज ऑल द वर्ल्ड आर बी ट्रीटेड एज द फैमिली. ओके. So you can see that the company was also aware that there had been increased level of interaction and interdependence among the various nations of the world, and India could be made a base for its international trade. और कंपनी ने देखा कि सारी जो नेशंस हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन और इंटरडिपेंडेंसी पहले के कंपैरिजन बढ़ गई है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. एंड इंडिया कुड बी मेड अ बेस फॉर इट इंटरनेशनल ट्रेड. और इंडिया ने अपना बेस क्रिएट किया है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ही all the business organizations situated in India can easily trade at international level. It set up its office in Gujarat with a view to capture the Indian market. और इसके कारण इस सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया गुजरात में, ताकि वो इंडियन मार्केट को ईजिली क्या कर सके, कैप्चर कर सके.
इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, छोटे टाइम में द कंपनी इमर्ज एज द मार्केट लीडर, और छोटे टाइम में ही कंपनी क्या बन गई, एक मार्केट लीडर बन गई. सक्सेस द कंपनी अट्रैक्टेड मैनी अदर प्लेयर्स टू इंटर द मार्केट, और कंपनी की सक्सेस को देखकर कई और भी कंपनीज, कई और भी पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन उस मार्केट में एंट्री कर गए. किस तरह की मार्केट थी, ये जो स्मार्ट वॉचेस, जिसके हेल्प से हम हेल्थ के पैरामीटर्स को मेज़र कर सकते हैं, जैसे हार्ट बीट मेज़र कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकते हैं. कंपटीशन रिजल्ट इन रिड्यूस इन प्राइसेस, और कंपटीशन बढ़ने के कारण जो स्मार्ट वॉचेस की जो प्राइसेस थी वो कम हो गई, देयर बाई बेनिफिटिंग द कस्टमर, और जिससे कस्टमर को बेनिफिट मिला. सो ये पूरा केस स्टडी है, यू कैन सी दैट. अब इस केस स्टडीज़ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, एज यू कैन सी दैट द क्वेश्चन in the above paragraph, two major concepts related to the government policy have been discussed, identify and explain those concepts. यानी आपको बेसिकली करना क्या है, इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद यू विल आइडेंटिफाई कि गवर्नमेंट पॉलिसी की कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. सो यू नो वेरी वेल विच ऑफ द टू कॉन्सेप्ट. if you are talking about the first concept, so you can easily identify from this paragraph the first thing which are related to the government policy. You know very well, they basically न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बेसिकली कौन सी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैव बीन एबोलाइज्ड, सो इट इज़ रिलेटेड टू द लिबरलाइजेशन. एंड नंबर सेकंड, इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन. सो ये आता है, एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन को. सो ये दो लाइन से यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस इज़ the two major concept related to the government policies are the number one liberalization and number two is a globalization. दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि इस पैराग्राफ से आपको दो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के, एक लिबरलाइजेशन और दूसरा ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स इट मीन्स integrating the various economies of the world leading towards the emergence of cohesive global economic. It means अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन से, तो लिबरलाइजेशन में जो अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बिजनेस पे, वो हटा लिए जाते हैं. एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि सारी देश की, वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमी है, सब एक जगह इंटीग्रेट हो जाती हैं और इंटरडिपेंड हो जाती हैं. यानी इफ़ देयर एनी नीड रिक्वायर्ड बाय द अनदर कंपनी, तो वो कंपनी अपनी नीड को दूसरी कंपनी से पूरी करता है, या नेशन से हम कह सकते हैं कि अगर यूएसए को किसी भी रॉ मटेरियल्स या किसी प्रोडक्ट की नीड है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो इंडिया उसकी हेल्प करता है. और अगर इंडिया को अपनी इकनॉमी को स्टेबल करने के लिए यूएसए से किसी तरह की कोई डिमांड होती है या नेसेसिटी होती है, तो वो यूएसए से भी हेल्प ले सकता है. सो ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरडिपेंडेंसी और इंटरेक्शन among the different nation will be increased. That's why the two important major concepts which are identified in this paragraph, that is liberalization and globalization. The second question is related to the paragraph, that is also explained briefly any three impact of those concept on business, Indian business and industry. आपको ये बताना है कि जो हमने चेंजेस लाया, हमने गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या लाया, लिबरलाइजेशन लाया और ग्लोबलाइजेशन लाया. तो उस लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन से हमारे इंडियन बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये भी आपको बताना है ना. ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री इम्पैक्ट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट ऑन द बिजनेस. सो इस पॉलिसी से क्या हुआ, पहले तो देखिए एंट्री हो सकी ईजिली फॉरेन मार्केट से, दूसरा मार्केट लीडर बना जा सका, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, जिसके कारण प्राइस रिड्यूस हुआ और कस्टमर को बेनिफिट मिला. यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस के लिए इजी मार्केट ओपन हो गया, यू कैन सी दैट एज. और क्या बेनिफिट मिला, कस्टमर्स के लिए जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो गया, जिससे उनके लिए बेनिफिट हुआ, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया. तो यू कैन सी दैट फर्स्टली तो कस्टमर के पास ऑप्शन बना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर के पास ऑप्शन बनता है, प्राइस कम होता है. कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज़ के बीच में एक फेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या लगी, रेस लगी, और इंडिया के लिए इंटरनेशनल मार्केट का जो दरवाज़ा था वो खुल गया. सो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी हद तक
इम्प्लीमेंट हो सका इंडिया में. सो अगर हम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी effects of impact of these concept on Indian business and industry, so we can classify into the few headings. The first heading is the increased competition, यानी लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है. कस्टमर डिमांडिंग होते हैं बिकॉज ही हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, सो मोर डिमांडिंग कस्टमर. रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में लगातार चेंज आता है क्योंकि हर जगह इनोवेशन देखने को मिलता है. necessity for change, need for developing human resource, market orientation, loss of budgetary support to the public sector. और पब्लिक सेक्टर को यू नो वेरी वेल, अगर पब्लिक सेक्टर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं एडिशनली, सो यू नो वेरी वेल पब्लिक सेक्टर के मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़ जो हैं वो लॉस मेकिंग ही होते हैं क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर. तो पब्लिक सेक्टर ने कुछ काम प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से, लिबरलाइजेशन की हेल्प से, ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर दिए, जैसे टेंडर पे काम दे देना, या फिर अगर हम बात करें कि उनका एडहॉक पे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, तो जिससे उनका जो लॉस एक्सपेंडिचर था वो रिड्यूस हो गया. जहां हमें 50-60,000 सैलरी देनी थी वहाँ हम कम देते थे. सो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से ये सारे चेंजेस देखने को मिले और ये सारे इम्पैक्ट्स इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से प्राइस सही मिला है, प्राइस सही मिलने से कस्टमर डिमांडिंग बने हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी इनोवेशन लगातार आने लगा है, नेसेसिटी फॉर चेंज यानी चेंज अब आवश्यकता बन गई है, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, अब हमें नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स से काम नहीं चलता है, हम कुछ अलग हों, हमारा ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, मार्केट ओरिएंटेशन यानी वी आर टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट, एंड लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर में जो भी लॉस हो रहा है बजट में या हम लॉस मेक कर रहे हैं तो सेक्टर्स को हम प्राइवेटाइज कर दें, तो वी कैन सी दैट कि इससे हम जो प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर में जो लॉस हो रहा है उस सेक्टर को जब प्राइवेटली कंपनी मैनेज करेंगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स मेकिंग में कन्वर्ट हो सकता है. सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट solution of the first case study, the solution of the first case study. Now we will move to the second case study. The second case study it is a very small question, as you can see that on your screen. ABC Limited is facing a lots of problem these days. ABC कंपनी ये बहुत सारा प्रॉब्लम देख रही है. The company's profit margin is declining day by day. और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जा रहा है, यानी कि या तो कॉस्ट बढ़ रहा है या तो प्राइस डिक्लाइन हो रही है. द प्रोडक्शन मैनेजर इज ब्लेमिंग मार्केटिंग मैनेजर, वेयर इज मार्केटिंग इज ब्लेमिंग प्रोडक्शन मैनेजर फॉर नॉट मेंटेनिंग द क्वालिटी. और उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि मार्केटिंग मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सही से प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहा है, ये कह रहा है. और मार्केटिंग इज ब्लेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको ब्लेम कर रहा है? प्रोडक्शन को, कि आप सही क्वालिटी का गुड्स नहीं बना रहे हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ब्लेमिंग बोथ. फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है मैंने तो पैसा दिया, सेल मार्केटिंग ने गुड्स को सही ढंग से बेच नहीं रहा है, और प्रोडक्शन जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं बना रहा है. व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजर डू यू थिंक इज़ लैकिंग? आप देख रहे हो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे फाइनेंस मैनेजर हो, सब के सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं. कोई अपने एरिया अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, या कह सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लोगों के अंदर इस बात की फीलिंग नहीं है कि हाँ गलती उनसे भी हुई होगी. या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें मैनेजर की कुछ एक बेसिक क्वालिटी है जो होनी चाहिए और आपको उसको ब्रीफली बताना है. सो यू कैन सी दैट द सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी. द क्वालिटी विच इज़ लैकिंग इन द अबव केस, coordination. Okay, the quality which is lacking in the above case is the coordination. The manager is able to execute all the function. Manager सब सारे function execute कर सकता है, but he is unable to coordinate these function. And coordination is not a mere function of the manager, but is the essence of the management. जैसे मैंने आपको कल के वीडियोस में बताया था कि coordination is very important. Coordination is everywhere. कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ मेयर फंक्शन ऑफ द, ये सिर्फ मैनेजर का फंक्शन नहीं है, बल्कि इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजर. चाहे प्लानिंग हो, वहाँ पे मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हो. सो सारे मैनेजर्स, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो, सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इफ़ देयर इज़ अ नो कोऑर्डिनेशन, सो वी कैन नॉट से दैट
काम कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि मैनेजर की कौन सी क्वालिटी एब्सेंट है, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन. अगर कोऑर्डिनेशन होता तो पहले तो ब्लेमिंग नहीं होता. दूसरा, प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोग एक आपस में कोऑपरेट करते, कोऑर्डिनेट करते, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करते. एक अच्छा कोऑर्डिनेशन ये एक्सप्लेन करता है कि दे कुड नॉट ब्लेम ऑन ईच अदर, बल्कि दे आर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. Firstly, they identify the problem and thereafter they are talking about the solution, not on the blaming. Okay, so this is the solution of question number 17. Now let's we move to the next question. As you can see that on screen, the question is 24 Mega Limited. Mega Limited was manufacturing water heaters in the first year of its operation. Mega Limited ने manufacture किया water heater कब? अपने operation के first year में. The revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. जो revenue आई फर्स्ट ईयर वो उसने अपनी सारी कॉस्ट को बियर कर लिया. बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये केस स्टडी बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है. सो मेगा लिमिटेड ने फर्स्ट ईयर अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया. अभी नई नई कंपनीज है और पहले साल उसने जो भी खर्चा किया, जो भी अर्न किया, वो उसके कॉस्ट के इक्वल थी. यानी कि इट मीन्स द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट कॉस्ट. यानी कि जितना उसने कॉस्ट बियर किया और जितना उसको रेवेन्यू मिला, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल थी. यानी कंपनी जितना रेवेन्यू अर्न की उससे अपना कॉस्ट पे कर दी. टू इंक्रीज द रेवेन्यू, अब प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेवेन्यू इंक्रीज होनी जरूरी है. टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीज़न फॉर लेस रेवेन्यू. कंपनी ने रीज़न पता किया कि आखिर कंपनी की रेवेन्यू कम क्यों हो रही है. आफ्टर एनालाइज द कंपनी डिसाइडेड, एनालाइज करने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वॉज अवेलेबल एट अ वेरी फ्यू रेट. उसने पहला सॉल्यूशन निकाला कि जो हमारा लेबर है उसे हम शिफ्ट करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको हम शिफ्ट करेंगे बैकवर्ड एरिया में. बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करने से क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, कि वहाँ पर हमें लोअर रेट पे लेबर मिल जाएंगे, कम रेट पर हमें लेबर मिल जाएंगे. जब हमें कम रेट पे लेबर मिलेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो सकता है. सेकेंड, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स. और हम जो प्रोडक्शन करेंगे उससे किस बेस पे करेंगे, सोलर वाटर हीटर्स पे. एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स. यानी हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्शन न करके बल्कि हम सोलर से करेंगे. जिससे क्या होगा, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क, जिससे हमारा रिस्क ही कम नहीं होगा, बट ऑल्सो इन द मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव, और कुछ और अदर ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. आपको इसमें ये बताना है कि मैनेजमेंट का किस ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है और उसको एक्सप्लेन भी करना है. सो फर्स्टली पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ो तो इसमें बेसिकली कंपनी सर्वाइवल के स्टेटस पे, यानी वो सिर्फ अपने इतना रेवेन्यू अर्न करी कि जिससे वो अपना कॉस्ट पे कर सके, एटलीस्ट उतनी वो रेवेन्यू अर्न कर रही है. यानी कंपनी हैज़ अ फेज ऑफ द सर्वाइवल एंड दे वांट टू मूव टू द प्रॉफिट. Thereafter they will be talking about the ग्रोथ. तो पहले तो सर्वाइवल स्टेटस पे है क्योंकि न्यू कंपनीज है, उसके बाद वो प्रॉफिट की तरफ मूव करेगी. तो एक ऑब्जेक्टिव तो यही सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का प्रॉफिट. दूसरी अगर हम बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव की, यू कैन सी दैट सोशल ऑब्जेक्टिव में उसने क्या किया कि टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द बैकवर्ड एरिया. यानी बैकवर्ड एरिया के लेबर्स को जॉब प्रोवाइड करना. इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि जो बैकवर्ड पर्सनस हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट करना. तो वो भी कर रही है. और मैन्युफैक्चरिंग किस पे कर रही है, सोलर बेस्ड पे कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी और इलेक्ट्रिसिटी की सेव होगी. सो कहीं ना कहीं ये सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर रही है. आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. सो यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्टिव डिस्कस इन द अबव पैरा, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कौन सी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, दैट इज़ अ प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी सर्वाइवल स्टेज पे है एंड कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉफिट को बताना पड़ेगा. सर्वाइवल क्या है, वो अभी अर्न कर रही है. ऑब्जेक्टिव
सोशल ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी लेस यूज़ कर रही है और सोलर ज़्यादा यूज़ कर रही है, यानी कि टोटली मैन मेड रिसोर्सेज पे कम फोकस करके नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड केस स्टडी. लेट्स वी मूव टू द next question of today's video, that is question number 20. Damini D'Souza. Damini D'Souza took over the reins of Kinsa Retail and its managing director in India. Kinsa Retail, which is headquartered at Japan, has been in retail business for the last 40 years. It has a regional office in many countries, with each regional office taking care of the shops in a particular region. ने मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया में दामिनी डिसूजा, और उनका जो बिज़नेस है किंसा रिटेल, उसका हेडक्वार्टर जापान में है और 40 साल से वो कंपनी जो है रिटेल बिज़नेस में वर्क कर रही है. उसका रीजनल ऑफिस इन मैनी कंट्रीज़, उसकी जो रीजनल ऑफिस है बहुत सारी जगहों पर है. एंड विथ ईच रीजनल ऑफिस टेकिंग केयर ऑफ द शॉप इन अ पर्टिकुलर रीजन, और हर शॉप रीजन ऑफिस में उसके लिए पर्टिकुलर शॉप भी बनाई गई है. As it is a large organization, the regional officers have been given the powers to decide and spend fund sanctioned to them by the headquarter for the welfare of the customer of their region. यानी हर रीजन के जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं उनको ये पावर दिया जाता है कि वो कस्टमर के वेलफेयर के लिए स्पेशल फंड सैंक्शन कर सकते हैं. सैंक्शन मतलब इशू कर सकते हैं. किंसा रिटेल वांट्स टू हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट बीइंग फॉलोड बाई, for which a code of conduct in place of the putting values into practices. You know very well किंसा रिटेल जो है वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को, पॉसिबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे. ऑल एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द बोर्ड मेंबर आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. और सारे एम्प्लॉयज़ ऑफ बोर्ड एज वेल एज द बोर्ड मेंबर भी क्या करते हैं, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को अलग रखते हैं. व्हेन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी जब वो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं तो उनका ज़्यादा फोकस जो होता है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पर होता है. नॉन कंप्लाइंस इन्वॉल्व्स अ हैवी पेनाल्टी इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर आप नॉन कॉम्प्लाइंस होते हैं, अगर अपने आप को काम को अच्छे से नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या लग सकता है, हैवी पेनाल्टी लग सकता है और उनका टर्मिनेशन भी कह सकता है. स्टेट 2 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय द किंसा रिटेल. आपको ये बताना है कि इसमें किंसा रिटेल ने कौन से 2 प्रिंसिपल फॉलो किए हैं. बहुत ही ध्यान से सोचिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी थिंग्स. फर्स्टली यू नो वेरी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विटी. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द सॉल्यूशन. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इसमें अगर आप देखो तो किंसा रिटेल इक्विटी को फॉलो कर रही है बिकॉज ऑफ कंपनी जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और एथिकल इक्विटी यही कहता है कि इक्विटी मतलब समानता का भाव हो. और जो जनरल मैनेजमेंट है, पहले तो डिसिप्लिन, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर फॉलोड इन दिस पैराग्राफ, दैट इज़ अ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, विच रेफर्स टू obedience in organization rules and employment agreement that are necessary for the working of the organization. It requires good superior at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalties. यानी डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना, और जब जो सारे रूल्स एंड एग्रीमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इसलिए उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है. और इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, और हर लेवल पे एक गुड सुपीरियर हो जो क्लियर, फेयर और जुडिशियस एप्लीकेशन करे पेनाल्टीज़ का. मतलब जो पेनाल्टीज़ हों डिफरेंट एम्प्लॉयज़ पे जो लगे जाने, जैसे उनका सैलरी कट हो जाए या उनकी लीव कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए बेसिकली एक अच्छा सुपीरियर होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर सुपीरियर अच्छा नहीं होगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, और डिस्क्रिमिनेशन से क्या आएगी, इनइक्वालिटी आएगी. नंबर सेकेंड, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विथ मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन. सो यहाँ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉपरली एक सेंट्रल ऑफिस है, दैट इज़ हेड ऑफिस इन जापान, और उसके कई रीजनल ऑफिस हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में आ गया. और डिसेंट्रलाइजेशन में लोगों को एक सेंट्रलाइज पावर दी गई है
ताकि वो कस्टमर के वेलफेयर के लिए फ़ंड को इशू कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग के कुछ चीज़ों को देखें तो वी कैन सी दैट इन दिस पैराग्राफ वी फॉलो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ अ डिसिप्लिन. सेकेंड इज़ अ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. वाई? बिकॉज इसमें सेंट्रलाइजेशन भी फॉलो किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? एक ऑफिस जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो जापान में है और रीजनल ऑफिस सारे देशों में है. और रीजनल ऑफिसर्स को सेंट्रलाइज पावर भी दिया गया है कि दे कैन इशू द स्पेशल फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर. यानी ये सेंट्रलाइज्ड है, उनको अथॉरिटी दी गई है इस तरह की. ओके, सो you can see that in today's video we discussed a lots of case studies. Okay, the first case study which are related to the business environment, the second case study which are related to the objective of management, the third case study which are related to the principle of general management. Okay, so let's we move to the next topic. So at the end of today's video, let's we take a few MCQ multiple choice question of chapter number 1, that is nature and significance of management. So as you can see that the first question on your screen, that is a question number 21. top level management does not include. top level of management में क्या include नहीं करते हैं? The first one, control the activities of all the department of organization. यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी हम कंट्रोल एक्टिविटीज़ करते हैं. मेक सब प्लान फॉर द लोअर लेवल. लोअर लेवल के लिए प्लान क्रिएट करना. डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ डिसाइड करना और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना. एंड इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड. तो देखिए इसमें इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आता है. मेक सब प्लान फॉर द लोअर लेवल, मुझे नहीं लगता ये आता है. लोअर लेवल के लिए प्लान कौन डिसाइड करता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो द आंसर इज 21 इज बी. येस, इट इज़ करेक्ट. और सारे डिपार्टमेंट पे कंट्रोल करना, यानी कि डिपार्टमेंट के हेड्स कहाँ होते हैं? मिडिल लेवल में. तो मिडिल लेवल को कंट्रोल करने का काम तो टॉप ही लेवल का होता है. नंबर सेकेंड इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. coordination is function of management, essence of management and objective of management. none of these. it is a very easy. मैंने बार बार अभी इस वीडियो में बताया है कि coordination is the essence of management. which of the following points support the fact that management is a profession. आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सपोर्ट करता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. बिकॉज इट इज़ अ सर्विस मोटिव, इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनलाइज एप्लीकेशन, it is based on experimentation, or it is based on the practice and creativity. think मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि एक सर्विस मोटिव है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, कि बेस्ड ऑन बेस्ड प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो देखो बेसिकली पर्सनलाइज एप्लीकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन इट इज़ अ फीचर ऑफ साइंस. Based on practice and creativity, it is also the feature of art. बचा एक service motive. Service motive is a feature of profession, and you know very well management is also take as the service motive. So the right answer is service motive, because all the other three option are not a feature of the profession. It is a feature of the art and science. Science का feature है principle based on experimentation, और art का है personalized application and based on practice and creativity. नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, यस. ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यस. पॉलिसी मेकिंग, यस. पॉलिसी मेकिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. थिंक नो. पॉलिसी मेकिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में नहीं आता. ओके, क्योंकि growth and profit is a part of the organizational objective and providing employment is a part of the social objective. The next question is question number 25. Policy formulation is the function of you know very well, it is very easy, top level of manager. top level of manager की responsibility होती है कि policy को formulate करे. Next question,
In the nature of social responsibility of manager applies buyer beware, seller beware, none of the two, both A and B. आपको ये बताना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जो खरीद रहे हो उनको जगाओ, जो बेच रहे हो उनको अवेयर करो, या किसी को भी नहीं अवेयर करो, या दोनों ही को कंक्लूड करो. तो 26 में इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी social responsibility of managers, so we are talking about the seller beware. Okay, that is 26p. And the last question of today's video is management is delegate responsibility involves money, materials, men, machines. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में है? मनी, मैन, मशीन, मटेरियल्स. Management is a delicate responsibilities. Think again. Yes, it is correct. That is a machine. Management is delicate responsibilities. It involves machines. Okay. So take one more question. The foremost need of development in a country is of physical resource, economic resource, efficient management. None of these. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड क्या है? मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट. सो द राइट आंसर इज ऑल्सो मैनेजमेंट. यस. सो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस्ड फर्स्टली द फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज related to the chapter number 1, 2 and 3, and thereafter we discussed the few of the important MCQ question which are also come in your half yearly examination. So I hope today we cleared all the topics very easily, all the queries very easily. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.